Hello students, my name is Jatin and today we are going to do exam type questions of applications of trigonometry, and this is part 2 of this chapter. In the part 1 we have already discussed some important questions. In case if you have not seen that video, please go and check that video first and then come back. Okay, in this video we are going to discuss a total of 7 questions. Okay, so let's start from the question 1 quickly. The angle of elevation of a cloud from a point, please ignore the barking sound of dog. The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degree, and the angle of depression of the reflection of the cloud is in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. Okay, disturb कर रहे हैं साले. So suppose this is a cloud. Okay, and the angle of elevation of the cloud from this point, let's call this point as A, right, is 30 degree, is 30 degree, right, and this point A is 60 meter above the ground, sorry, above the lake, 60 meter above the lake. So lake starts from 60 meter below that point A. So this is the point where the lake start, right, and the reflection of this cloud will be made somewhere inside the lake. This reflection of this cloud will be made somewhere inside the lake. Suppose the reflection is here, right, at the red mark. क्यों आ रहा है ये बार बार नोटिफिकेशन? ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्शन उस क्लाउड की. So and the depression from point A to this reflection is given to us as 60 degree. This is the overall question. Okay, find the height of the cloud. So let us name these. Okay, A, let's call this point as B, C, D, E and F. Okay, and find the height of the cloud means, and ये सबसे ऊपर वाला point आप दे दो M, जहाँ पे cloud है. We need to find MC, the height of the cloud from the lake, from where the lake starts. Okay, so this C is the emerging point where the lake starts, right, and we have to find CM, MC, right. Okay, now suppose this BM is, let's call this BM as X meter, right, from that point the height of the cloud is X meter, right, and can you guess what will be BD? BD will be, and this is 60 meter given to us, BC is 60 meter, right, BC is 60 meter which is given to us, and the height of the cloud from B is X meter. So can you tell, can you guess the distance of CD? CD will be X plus 60 meter. This is the catch in this question. This CD will be X plus 60 meter. अब ये कैसे हो गया X plus 60 meter? देखो, जो क्लाउड की रिफ्लेक्शन होगी ना, वो लेक के अंदर बन रही है, तो लेक के लिए तो ये B और F पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता. लेक तो ये देखेगा कि मेरे ऊपर क्लाउड कितना है, ठीक है, क्लाउड उसके ऊपर कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है, 60 प्लस X मीटर की दूरी पे है. तो लेक के अंदर वो जो रिफ्लेक्शन बनेगी वो 60 प्लस X मीटर नीचे ही बनेगी. तो CD जो होगा आपका वो 6X प्लस 60 मीटर होगा, ठीक है. एंड वी नीड टू फाइंड MC. आपको MC निकालना है. सो वी हैव 2 ट्राइंगल्स, राइट. सो आई विल अप्लाई फर्स्ट. तो डायग्राम मैं मिटा नहीं सकता, इसको मैं कर नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, इन ट्राइंगल FBD में आप tan 60 लगाओ. देखो ये वाली साइड, देखो आपको ये बात समझ में आती है कि BF जो साइड है, ये BF वाली साइड ये कॉमन है दो ट्राइंगल में. एक तो FBD में कॉमन है और ABM में कॉमन है. दिस BF साइड इज कॉमन इन FBD एंड ABM. प्लीज ऑब्जर्व दिस केयरफुली, राइट. सो आई विल अप्लाई इन ट्राइंगल FBD में tan 60. Tan 60 will be perpendicular upon base, everyone knows, right, and the perpendicular will be BD, right. Perpendicular is the side in front of the angle, acute angle. So acute angle is 60 and the side in front of this acute angle is BD only, right. So BD upon, and the base will be BF, right. So tan 60 everyone knows, √3, right. BD can I write 60 plus X plus 60? Yes,
BD can I write 60 plus x plus 60 if you can see, right? And BF let it be BF only. Okay, so we have to find the value of BF. So BF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BF की वैल्यू हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि BF दोनों ट्राइंगल में कॉमन है. सो 120 अपॉन में x अपॉन √3 विल बी नथिंग बट BF, राइट? सो शैल आई रब दी लेफ्ट वाला पार्ट, इसको मिटा देते हैं. अब लगाता हूँ मैं ऊपर वाले ट्राइंगल में. नाउ आई अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन दी ABM, राइट? सो in triangle ABM I'll find tan 30 will be MB plus upon में FB, it means perpendicular upon base. MB is x, FB we don't know, right? Tan 30 we know 1 upon √3. So can we find BF again? So BF is x √3 meters. Okay, now we have BF from both the triangles. So shall we equate now? Can we equate? चलो अब इक्वेट कर देते हैं. BF VF की वैल्यू दोनों आ गई हमारे पास. सो यार इसको सो 120 प्लस x अपॉन √3 विल बी इक्वल टू x √3, राइट? वी नीड टू फाइंड x ना. x निकालो फिर x प्लस 60 निकल जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 होता है 3x, राइट? सो x 2x इज इक्वल टू 120, x विल बी 60 मीटर्स. आपका x आ गया 60 मीटर. और ये देखो ये वाला BM आ गया आपका 60 मीटर, ठीक है? यू हैव गॉट BM एज 60 मीटर. एंड नीचे ग्राउंड तक, उस पॉइंट से ग्राउंड तक का डिस्टेंस भी 60 मीटर था. तो टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड इज़ 120 मीटर. सो यू हैव गॉट टोटल हाइट of the cloud is 120 meters. It is a very important question. This question could come in your exam this time. Okay, now let's move on to question number 2. Question number 2 says the angle of elevation of a cloud from a point h meters above the lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Can you try this question on your own? It is very similar to the question number first, right? In the lake is beta. Prove that the height of the cloud is h into 10 beta plus 10 alpha upon में 10 beta minus 10 alpha. I will insist you, please pause this video and try to solve this question on your own, then come back. Okay, it is very similar to the previous question. Now this angle explanation will remain same, diagram will remain same, so I am not explaining it again, right? So this angle is given to us as alpha and it is h meters above the ground. So this is h meters above the ground, similar to the 60 meter in the previous question, right? And the lake start from the red line. So for the lake the cloud is this total, ये पूरा लेक के लिए वो पूरे क्लाउड की हाइट है, ठीक है? सो लेट मी नेम इट A-B-C और नीचे जहाँ रिफ्लेक्शन बनेगा उसको कह देते हैं D. यहाँ पे रिफ्लेक्शन बन रहा है क्लाउड का और ये बीटा एंगल पे है, इसको कह देते हैं हम D. इसको कहते हैं E, F और G, ये बीटा है, ठीक है? तो अब हमें निकालना है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड. अगेन हाइट ऑफ द क्लाउड वी नीड टू फाइंड, राइट? अगेन वी विल टेक द ट्राइंगल GBD. इन ट्राइंगल पहले यहाँ ले लेते हैं. AB को हम कुछ, इसको ये h मीटर्स गिवन है, AB को हम AB ही लिखेंगे इस बार, ठीक है? BC वी आर गिवन h मीटर्स, सो BC वी हैव h मीटर्स, right? So in triangle GBD tan beta will be BD upon BG, BD upon BG. and can I write BD as, देखो अगर ये x है तो ये CD will be, CD कितना होगा आप बता सकते हो? CD will be AB plus H, CD will be AB plus H. मैंने आपको फिर बताया जो लेक है उसके लिए तो क्लाउड पूरा AC मीटर ऊपर है ना, तो AC इज़ वॉट AB प्लस H ओनली, ठीक है? तो tan बीटा इज़ BD कैन आई राइट H प्लस AB प्लस H, क्योंकि BD को हम क्या लिख सकते हैं? कहाँ है BD? ये रहा BD, तो H तो है और CD विल बी A प्लस H, CD AB प्लस H है ना, ठीक है? BG let it be BG only and we can find the value of BG because BG side is common, so 2H plus AB upon tan beta is BG. Okay, so we have got BG
नाउ वी विल अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राइंगल ए बी जी। ए बी जी में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो टेन अल्फा विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी जी। अगेन बी जी is AB upon 10 alpha. Shall we equate now? We have BG from both the triangle, so we can equate. So on equating AB upon 10 and beta, 2H plus AB upon 10, सॉरी अल्फ़ा कहीं था ना, ये अल्फ़ा है, 10 बीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप। कैसे करोगे सॉल्व? ए बी निकालना है हमें यहाँ से, ठीक है। तो ए बी कैसे निकलेगा? ए बी अपॉन 10 अल्फ़ा को यहीं रहने दो और उसको यहाँ ले आओ। ए बी अपॉन 10 बीटा को इस तरफ ले आओ और 2H अपॉन 10 बीटा वहीं रहेगा, ठीक है। मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया। ए बी कॉमन ले लो अब। सो अंदर एलसीएम लोगे तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा होगा और नीचे क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 2H अपॉन 10 बीटा तो चल ही रहा है, ठीक है। लेट मी रब। अब क्या करोगे? ए बी इज इक्वल टू ये 10 बीटा विल गेट कैंसल्ड एंड ए बी आपका आ जाएगा 2H इंटू 10 अल्फ़ा अपॉन में 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, ठीक है। आपके पास ए बी आ गया है, लेकिन हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है? ए बी प्लस एच। सो वी विल फाइंड ए बी प्लस एच। सो ए बी प्लस एच विल बी, दोनों तरफ एच मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाइट ऑफ द क्लाउड इज ए बी प्लस एच ओनली, ठीक है। तो 2H 10 अल्फ़ा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, इसको मिटा दें। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 2H 10 अल्फ़ा प्लस H इंटू 10 बीटा माइनस H इंटू 10 अल्फ़ा अपॉन में 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, ठीक है। इसके बाद हम हम हाइट ऑफ द क्लाउड ही निकाल रहे हैं अब तो। सो हाइट ऑफ द क्लाउड विल बी, देखो ये 2H 10 अल्फ़ा और ये H 10 अल्फ़ा क्या हो जाएगा? H 10 अल्फ़ा, ठीक है, 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा H 10 बीटा और नीचे 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, ठीक है भाई, पता है मुझे वायरस है। तो हाइट ऑफ द क्लाउड, अब H कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा, नीचे होगा आपका 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। सो यू हैव प्रूव्ड इट। देखो ये और ये सेम ही तो है। ओके, now let's move on to question number third. Question number third says a man on a cliff observes a boat at an angle of depression of 30 degree which is approaching to the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. Okay, 6 minutes later the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the time taken by the boat to reach the shore. Again a very important question. Suppose this is दिस इज़ वेयर द ऑब्जर्वर इज़, ठीक है। यहाँ पर है ये बंदा, बोट यहाँ पे है। बोट अभी कौन सा एंगल पे डिप्रेशन पे है? देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम यहाँ से मेजर करते हैं, ऊपर से कौन से एंगल ऑफ डिप्रेशन पे 30 डिग्री पे है। सो दिस एंगल विल ऑल्सो भी 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। वहाँ वो देख रहा है 30 डिग्री पे। अब विच इज़ अप्रोचिंग टू दी शोर, शोर मतलब किनारा, यहाँ पे किनारे के ऊपर ही है वो, ठीक है। होगा किसी पे? क्लिफ पे है, ये क्लिफ है, ठीक है। विच इज़ अप्रोचिंग टू द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द टैंक विद द यूनिफॉर्म स्पीड। 6 मिनट्स लेटर, 6 मिनट के बाद बोट का एंगल जो है वो बोट आगे आ रही है, ठीक है, शोर की तरफ आ रही है, तो 60 डिग्री हो गया डिप्रेशन। ये डिप्रेशन 60 हो तो ये भी 60, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, ठीक है। सो दिस इज़ द डायग्राम। अब वो पूछ रहा है कि कितने टाइम पे वो शोर तक आ जाएगी। सो A B C D, बोट अभी D पे है और बोट को आना B पॉइंट पे है। वो पूछ रहा है कितने टाइम में आ जाएगी। अगर ये DC का टाइम जो है वो 6 मिनट में आ जाती है,
डी सी जो है वो डी से सी 6 मिनट्स में आ जाती है, तो बोट जो है डी से बी कितने टाइम पे आ जाएगी। और हमें यहाँ एक चीज़ गिवन है, हमें टाइम गिवन है, वी आर नॉट गिवन दी स्पीड, एंड एवरीवन नोज दैट द डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। सो कैन आई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डी सी का डिस्टेंस हम कैसे लिख सकते हैं? आपको 6 मिनट तो गिवन ही है, तो 6 मिनट इंटू टी, सॉरी 6 मिनट इंटू एस, लेट द स्पीड बी एस ओनली, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी एस। तो मैं लिख भी देता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी एस, एस किलोमीटर पर आवर जो भी है, ठीक है, ठीक है। तो अगर वो एक्स किलोमीटर पर आ रहा है तो 6 डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी सी का डिस्टेंस आपको समझ में आता है, डी सी का डिस्टेंस 6 इंटू एक्स हो जाए, 6 इंटू एस हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इंटू टाइम, राइट। सो दिस विल बी डी सी। सो कैन आई राइट डी सी एज 6s? okay, if you understand this, so let us assume that the boat takes t minutes, क्योंकि मिनट्स में गिवन है, फ्रॉम सी टू बी, t मिनट्स फ्रॉम सी टू बी, ठीक है। अब वो सी टू बी में मैंने मान लिया कि टी मिनट्स में आ रही है, ओके। व्हाट विल बी द डिस्टेंस? बी सी का डिस्टेंस, यू एग्री, बी सी का डिस्टेंस विल बी एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। बी सी क्योंकि हमने टी माना है, पहले वाले का तो टाइम गिवन था 6, लेकिन इस बार नहीं गिवन है, तो मैंने टी माना, तो बी सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एस इंटू टी, ठीक है। सो यू आर गिवन नाउ बी सी एज एस इंटू टी, एस इंटू टी, ठीक है। नाउ वी हैव two triangles in front of us. In triangle and one side common AB, cliff, height of the cliff is common in both the triangles. We have triangle ABD and we have triangle ABC. So in triangle ABD में tan 30 लगाऊंगा. So this will be perpendicular upon base. Base can I write DC plus BC if you agree? Base can I write DC plus BC? And DC is nothing but 6s and BC is nothing but ST, right? So this is tan 30 equal to tan 30. So tan 30 is nothing but 1 upon root 3 and AB upon 6s plus ST. Can we find AB? AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6s plus ST upon root 3. This is the value of AB. Okay, so we have AB. I hope you are getting everything. Now we will apply in triangle ABC. ABC में tan 60 लगाओ. So AB upon, it will be AB upon BC. BC is nothing but AB upon, see BC क्या है? ST है ना, so root 3 is equal to AB upon ST. tan 60 is root 3 only, so you find AB. AB is ST into root 3. Now you have AB from ABC, you have AB from ABD also, right? So shall we equate now? Yes. So on equating both AB, we will get ST into root 3 और 6s प्लस एस टी अपॉन रूट 3. बस अब आपको t निकालना है यहाँ से, तो ये एस टी है, ठीक है, प्लस मत मान लेना, ये भी t है, ठीक है। अब यहाँ से आप रूट 3 इंटू रूट 3, s इंटू टी इंटू 3 इज इक्वल टू 6. यहाँ से s कॉमन ले लो, s कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 6 प्लस टी, s दोनों तरफ से कैंसिल, ठीक है। तो वी हैव 3t इज इक्वल टू 6 प्लस टी, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो t उस तरफ जाएगा तो 2t हो जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू 6, t इज़ 3 मिनट्स, मतलब 3 मिनट में वो C टू B आती है। लेकिन हमें टोटल टाइम पूछा है, तो पहले उसने 6 मिनट तो ले लिए थे और अब 3 मिनट और ले रही है, तो बोट का टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम इज़ 6 मिनट प्लस 3 मिनट, दैट इज़ 9 मिनट. 9 मिनट इज़ योर फाइनल आंसर. I hope you have got this question. Now let's move on to question number 4th. A man on the top of a vertical tower, again a very similar question. क्यों दिखा रहा है भाई? Observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. In the previous question the boat is coming, in this question the car is coming. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45 degree, how soon after this will the car reach the tower? I will insist you please do this question on your own. Please try this question on your own, then see the video. ठीक है. Again a tower is given. यार
दिस टावर इज़ गिवन, राइट, कार इज़ समवेयर हेयर, अज्यूम, यहाँ पे है गड्डी, ठीक है, और इस गड्डी का एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना है भाई, 30 डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि देखो गाड़ी जितनी दूर होगी ना उतना उसको गर्दन जो है मतलब ऐसे दिखानी पड़ेगी, उसका एंगल ऊपर से कम होगा, मेरे को गर्दन उतनी ही नीचे झुकानी पड़ेगी। अगर हम ऊपर से मेजर करेंगे तो देखो यहाँ पे मेरी गर्दन है, ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही झुकूंगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास आएगी ना मेरी गर्दन और नीचे जाएगी, जब मेरी गर्दन और नीचे जाएगी तो मेरा एंगल बढ़ रहा है ना ऊपर से, तो ये एंगल को मैं 45 डिग्री लूँगा। इसीलिए जब मैं वो गाड़ी जितनी पास आती रहेगी एंगल उतना बढ़ता जाएगा डिप्रेशन का। और यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप इसको भी 30 कह दोगे और इस पूरे को 45 कह दोगे, ठीक है। अब गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है, कितने मिनट में आ चुकी है, 12 मिनट में आ चुकी है, ये 12 मिनट टाइम है, और वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेट द स्पीड बी एस, लेट स्पीड बी एस किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वो तो एट द एंड कटना ही है, तो उसको तो कुछ भी मान लो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको मैं नेमिंग कर देता हूँ, पहले ए बी सी एंड डी, यू आर गिवन डी सी, डी सी का डिस्टेंस कैन यू फाइंड, स्पीड, स्पीड हमने एस मानी है और टाइम उसने 12 दिया ही हुआ है, 12 मिनट में डी सी कवर करता है, ठीक है। सो डी सी इज़ 12 इंटू एस, दिस इज डी सी, वी हैव, सो लेट्स अज्यूम अगेन द टाइम taken by car from C to B be T minutes, मान लो वो T मिनट्स में C to B में आ रही है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा BC का, S इंटू टी, डिस्टेंस विल बी S इंटू टी ऑफ BC, right? I hope you are getting this question. Again we have two triangles, will apply. So in triangle ABD I'll apply AB upon BD, and can we replace BD by DC plus BC, and everyone knows that AB is, सी इसको 10-30 भी तो लेना है, 10-30 डिग्री, ठीक है, P अपॉन B करा है हमने यहाँ पे, तो DC वी हैव 12S और BC वी हैव ST इज इक्वल टू 10-30, राइट, AB इज़ कॉमन ना, सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। सो AB की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√3 इंटू 12S प्लस ST, ऊपर है 12S प्लस ST, तो ये आ गई आपकी AB की वैल्यू, ठीक है, ये AB की वैल्यू है। अब विल फाइंड वैल्यू ऑफ AB फ्रॉम ट्राइंगल ABC, so in triangle ABC tan 45 will be AB upon BC, so AB upon BC, can I write ST? Yes, tan 45 is 1 only, so AB is equal to ST, AB की वैल्यू आ गई ST, क्योंकि tan 45 1 होता है। So shall we equate now? On equating, ST is equal to 12S plus ST upon √3, so ये √3 को उस तरफ ले जाओ या मत ले जाओ, चलो, √3 इंटू एस इंटू टी, एस कॉमन लोगे यहाँ से तो 12 प्लस टी आ जाएगा, ठीक है, एस कैंसिल, सो टी विल बी, अब यहाँ से एक सेकेंड, टी अभी ऐसे कैसे निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3t इज इक्वल टू 12 प्लस टी, सो 12 इज इक्वल टू √3 टी माइनस टी, ठीक है, टी उस तरफ जाएगा, आप टी कॉमन ले लो, on taking t common we'll get t is equal to √3 into √3 minus 1 is equal to 12, so t की वैल्यू आपकी आ गई 12 अपॉन √3 माइनस 1। आप इसको चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, आपको रैशनलाइज करना है तो, ठीक है, अगर आप रैशनलाइज कर दोगे तो डिनोमिनेटर के जो साइन है उसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा आपका √3 a प्लस बी माइनस बी लग जाएगा, सो आपका हो जाएगा 3 माइनस 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो आपका फाइनल आंसर होगा 6 इंटू √3 प्लस 1 और अगर √3 की वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में तो डाल देना। क्वेश्चन नंबर 5,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. सो वी आर गिवन अ टावर, दिस इज टावर, उसी के सामने हिल है, ये रहा हिल. मान लो हिल की हाइट ऐसे है, ठीक है. उसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहाँ से ये टावर है, टॉप ऑफ द हिल. क्यों आ रहा है यार? टॉप ऑफ द हिल का एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द foot of the tower is 60 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill ये हिल है, ये कितना है? 30 डिग्री का, ठीक है. अगर हाइट ऑफ द टावर is 50 मीटर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द हिल? सो A, B, C, D, ठीक है. वी नीड टू फाइंड DC we need to find height of the hill, right? And we all know that DC and AB, tower and as well as the hill, will stand on the ground at the angle of 90 degree, right? So we have two triangles and BC is common. So in triangle ABC I'll apply, क्या अप्लाई करूँगा? tan 30 अगर अप्लाई करूँगा तो tan 30 क्या सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी AB अपॉन BC, और tan ही क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि BC दोनों में कॉमन है, ठीक है. तो BC की वैल्यू निकालूंगा. AB we are given 50, tan 30 we all know 1/√3. Okay, someone has come in my house. Okay, so please give me 2 minutes. All right, so okay, I hope the angle of the camera is fine. Yes, okay. So we have BC, right? So BC निकाल रहे थे ना. Okay, सो BC विल बी 50√3. देखो ये √3 जो है वो सबसे ऊपर जाएगा 50 के साथ, ठीक है. सो वी हैव गॉट BC एज 50√3. सो अगेन आई विल अप्लाई trigonometry in triangle DCB. If I applied in triangle DCB, again I will apply tan 60 is equal to DC upon BC, right? We know BC now, so √3 is equal to DC upon BC is 50√3. I'll write 50√3. Okay, so we have got ये this equation ना, ये equation आ गई है. अब तो we can find DC as 50√3 into √3. Okay, so our final answer is 50 into 3, that is 150 मीटर. 150 मीटर का हिल है. So we'll do question number 6. A tree 12 meter high is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. At what height from the bottom the tree is broken by the wind? Okay, एक पेड़ है, एक पेड़ है पिंक कलर का, ठीक है. इसकी हाइट जो है वो 12 मीटर है और ये बीच से कहीं टूट जाता है. सपोज़ यहाँ से टूट गया और नीचे इसका जो टॉप है वो आप टच कर रहा है, ये पूरी टहनी जो है ये, तो आपको ये बात समझ में आती है कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है. क्योंकि ट्री की हाइट जहाँ से टूटा है वही तो टच कर रहा है ग्राउंड में, और ग्राउंड को कहीं यहाँ टच कर रहा है, ठीक है. तो मान लेते हैं जो खड़ा हुआ ट्री है ना अभी भी, उसकी हाइट x मीटर है. अगर उसकी हाइट x मीटर है तो क्या आपको भी बात समझ में आती है कि ऊपर वाले की हाइट 12 - x हो जाएगी, क्योंकि 12 तो टोटल थी, ठीक है. आप नेमिंग कर लो.
नेमिंग करोगे तो ए बी सी, अगर ये ऊपर और ये डी कह दो, चलो अगर ए डी वी आर गिवन 12 माइनस एक्स, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ए डी इज 12 माइनस एक्स, सो ए सी विल ऑल्सो भी 12 माइनस एक्स, ए सी विल ऑल्सो भी 12 माइनस एक्स, ठीक है, और एट एन एंगल ऑफ वट 60 डिग्री, दिस इज द टॉप टचेज द ग्राउंड at an angle of 60 degree. So we have, this is 90 degree because T stands on the ground at the angle of 90 degree, right? So in triangle ABC, can I apply sin 60? This time I have to apply sin 60. Why? Because we are not given the length of base. We are not given the length of base. So we are given only perpendicular and hypotenuse. So perpendicular is AB and hypotenuse is AC. Right, so sin 60 is nothing but root 3 by 2, AB is x and hypotenuse is 12 minus x. Can you find x now? Easy question, x निकाल सकते हैं हम. So ये हो जाएगा 12 रूट 3 माइनस रूट 3 x इज इक्वल टू 2x, ठीक है. So 12 रूट 3 इज इक्वल टू x 2 माइनस रूट 3, ओके. So we will get 12 रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ठीक है. So the height क्या निकालनी, at what height from the tree is broken by the wind? So we need to find x only, ठीक है. मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलत तो नहीं कर दिया. this upon this is equal to tan sin 60 ना, sin 60 is root 3 by 2 only. sin 60 is root 3 by 2, ठीक है. सो रूट 3 by 2 मैंने करा, उसके बाद मैंने क्या करा था, शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, दोबारा करने दो. sin 60 is equal to x upon 12 minus x, so root 3 by 2 is equal to x upon 12 minus x, ठीक है. अब ये हो जाएगा 12 रूट 3 माइनस रूट 3 x इज इक्वल टू 2x, सो 12 रूट 3 इज इक्वल टू x 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, सॉरी हाँ. तो x विल बी 12 रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3, ठीक है. सो वी हैव गॉट x. यही हमारा आंसर फाइनल है. अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं. अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं तो रैशनलाइज भी कर देते हैं इसको एक बारी, क्योंकि रैशनलाइज करके आपको दिखाना पड़ेगा. सो ऑन रैशनलाइजिंग इट विल गेट 12 रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पे तो 2 प्लस रूट 3 चल ही रहा है, ठीक है. सो ये हो जाएगा 12 रूट 3 2 माइनस रूट 3, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, सो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. सो इट विल बी 12 रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3, सॉरी, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, राइट. सो इट विल बी 24 रूट 3 माइनस 12 रूट 3 upon में 1. This is your final answer. You can leave it here only. Now let's move on to last question. Question number 7. At a point on the local ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5 by 12. On walking 192 meters towards the tower, the tangent of the angle of elevation is 3 by 4. Find the height of the tower. Okay, so we are given a tower. This is the tower, right? And we are given 2 points. At a point on level ground, the angle of elevation of the vertical tower is found to be such that its tangent is 5. So let's call this angle as alpha, and we are given the tangent means tan alpha, tan, and that angle is 5 by 12 on walking 192 meters towards
the tower. So on walking 192 meters, A, B, C and D. So this, let's call this angle as beta, okay, because we are not given any angle, we are not given any angles, and DC is 192 meters, DC is 192 meters, right? So we have two triangles. So in triangle ABD, in triangle ABD will apply trigonometry. So on applying trigonometry, tan alpha will be equal to AB upon BD, right? Okay, so AB is common, so BD is, can I write BD as 192 plus BC? Okay, and tan alpha is given to us as 5/12. So 5/12 will be equal to AB upon 192 plus BC, right? Okay, we need to find the height of the tower. We need to find AB ना, ठीक है. So यहाँ से ये क्वेश्चन को साइड में रखते हैं अभी. In triangle ABC will apply trigonometry. So tan beta will be equal to AB upon BC, right? So tan beta is given to us as 3/4 because the tangent of the angle of elevation is 3/4 when we approach, he approached 192 meters towards the tower, right? So angle become beta. So tan beta is given to us as 3/4. Please read this line. The tangent of the angle of elevation is 3/4, right? On walking 192 meters, after walking 192 meters, right? So can we find AB? So AB from here will be, या BC निकालें. देखो हमें AB तक पहुंचना है, ठीक है, AB हमें निकालना, तो AB की ज़रूरत मुझे पड़ेगी. तो अगर AB की ज़रूरत पड़ेगी, चलो निकालते हैं, AB निकालते हैं क्योंकि AB कॉमन है. सो tan बीटा इंटू BC इज इक्वल टू AB, ठीक है, और यहाँ से भी AB निकालोगे, एक सेकेंड. सो AB पहले tan बीटा की वैल्यू डाल देते हैं 3/4 इंटू BC, ठीक है, कुछ नहीं करना. अब AB दोनों तरफ से आ जाएगा. यहाँ से मैंने AB निकाला नहीं, सो AB निकाल देते हैं पहले यहाँ से. सो AB विल बी 5/12 इंटू 192 प्लस BC, ठीक है, इसको यहीं रखो. अब दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों ही AB हैं, तो दोनों ऑन इक्वेटिंग बोथ 5/12 192 प्लस BC इज इक्वल टू 3/4 इंटू BC, ठीक है, ऑन इक्वेटिंग बोथ will found BC, right? So 4 1s are 4, 4 3s are 12, right? So 5 into 192 plus BC into 5 is equal to 9 BC, क्योंकि ये 3 नीचे से ऊपर जाएगा उस तरफ. 5 into 192 is equal to 9 BC minus 5 BC. So 4 BC is equal to 5 into 192. So BC is nothing but 5 into 192 upon 4. 4 4s are 16, 48. 5 into 48. BC is 5 into 48. Okay. So we have got BC as 5 into 48. Now we have to find AB. AB तो हमें पता ही है, कोई भी ट्राइंगल से, दोनों ट्राइंगल से AB निकाला था हमने. So AB is 3/4 into BC, right? यही तो था AB. AB is equal to 3/4 into BC. So 3/4 into BC is 5 into 48, right? Found. So we need to find AB. So calculate this only. You will get AB. So 4 12s are 4 1s, हाँ ठीक तो है. So 12 into 5 into 3 is AB. So that is 12 into 5 into 3, 60 into 3, that is 180 meters is your height of क्या है, tower. Okay, so here with this question we are done with all the important questions of applications of trigonometry. Apart from this, you will do your NCERT. In case if you encounter any doubt in your NCERT, please message me on the numbers provided in the link. Okay, so and please do these questions that I have provided you in the 2 videos. Okay. Thank you so much.